Hello and welcome back to your channel Fake Safari. My name is Abhishek and today we are into the second video lesson on the simple harmonic motion. I believe you must have seen the previous videos where I've discussed about the oscillation and the periodic motion. आज हम लोग oscillations को आगे लेकर बढ़ेंगे and we're gonna see one specific type of oscillation जिसको हम लोग बोलते हैं simple harmonic motion. All good? तो first of all let us understand कि oscillation के लिए what are the necessary condition that we must have for the body to oscillate. तो पहला चीज आपको होना चाहिए for the oscillation we should have the restoring force. We should have the restoring force or the torque. Restoring force or the torque. Now, if it is a linear motion, linear SHM, then we need the force, and if it is a angular SHM, then we should have the restoring torque. Today we will discuss in detail about these two things. Now, second thing, what is the meaning of restoring force? इसका मतलब आपको पता होना चाहिए. एक एग्जांपल से समझते हैं. Spring block system is a very classic example of this thing. Let's suppose if I have a block and a spring kept on a smooth surface, कोई यहाँ पे friction अभी नहीं है, because we know that for oscillation the energy should be conserved. मैंने कल बताया था कि energy conserve होना चाहिए, mechanical non mechanical energy नहीं transfers नहीं convert होना चाहिए, which means all the forces which will be acting upon over here should be the conservative forces. अगर conservative force नहीं है then the energy would be lost and then it's not going to be an oscillatory motion. In fact that is going to be a damped oscillatory motion क्योंकि उसका energy lose होगा तो उसका amplitude will keep on decreasing and after a certain period of time it will come to a stop because that is a damped oscillation, उसका energy lose हो रहा है. So it is very essential that all the forces acting बच्चों that should be conservative in nature, है ना? अच्छी बात है. Now let us say that this block and the spring having spring constant, let's suppose K. Initially at rest, this is the mean position and मैंने ये भी बता रखा था कि mean position is the position of the where the net force is zero, जहाँ पे energy नहीं होता है, right? That is the most stable place, that's the most stable position, that's what we call as a mean position. तो भैया यहाँ पे तो बहुत ही stable रहेगा block और ये spring system कुछ भी नहीं है. Now let us suppose I applied a certain amount of force, कुछ मैंने इसको push कर दिया, ठीक है? तो ड्यू टू दैट पुश दिस ब्लॉक इज गोना गो फॉरवर्ड और हमारा स्प्रिंग जो है बच्चों वो थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा. स्प्रिंग वुड बी सडनली स्ट्रेच्ड, एक कुछ ऐसा हो गया और दिस इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, ये राइटवर्ड अभी भी जा रहा है. लेट्स सपोज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट हैज अ वेलोसिटी v. ड्यू टू दिस स्ट्रेचिंग इस स्प्रिंग में एक टेंडेंसी आएगा टू पुल द ब्लॉक बैकवर्ड. क्यों? क्योंकि द फोर्स द स्प्रिंग फोर्स दैट वुड बी डेवलप्ड ओवर हियर इज गोना पुल इट बैकवर्ड. मतलब जो स्प्रिंग फोर्सेस पे जो क्रिएट होगा बच्चों दैट इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन एंड वी नो द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्प्रिंग फोर्स इज गिवन एज F इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ X और X क्या है? X इज द इलोंगेशन और द कंप्रेशन फ्रॉम द मेन पोजीशन. ये हमने बहुत ही पहले NLM चैप्टर में बात कर रखी है. तो फ्रॉम हियर टू हियर लेट्स सपोज द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग हमारा, इलोंगेशन इन द स्प्रिंग हमारा X है, देन द फोर्स वुड बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन और आपका जो वैल्यू होगा फोर्स का K टाइम्स ऑफ X होगा. अच्छा, अगर मैं थोड़ा इसको ऐसे दिखा दूं, दैट इज द एक्सटेंशन और द इलोंगेशन इज टेकन फ्रॉम द मेन पोजीशन. हमको पता है जो भी एक्सटेंशन या कंप्रेशन होता है वो मेन पोजीशन से लिया जाता है. सो इफ आई लुक एट दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देन दिस इज इन द राइटवर्ड डायरेक्शन whereas the force acting upon this is in the leftward direction. So if I want to write this force in the vector form, can I say that? And इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Restoring force. So F restoring should be negative of K times of X dash. This negative sign, अगर हमने यहाँ पे R लिया है, चलो इसको X मान लो, restoring force को हमने X माना, ठीक है? क्योंकि variable आप taken as X, अगर हम R लेते तो I could have taken FR, तो that's not a big deal. तो this restoring force would be negative of this vector, means कि आपका जो displacement from the main position है and the force are acting in the opposite direction. So point number 2, that restoring force and displacement or from the mean position, displacement from the mean position will be in opposite direction, are in opposite direction. एक condition हो गया, second condition for the oscillation to take place. समझ में आ रही बात है ना? अच्छी बात है. Now after a certain point of time this would reach to the maximum extension. उसके बाद extension possible नहीं है. So at that point of time the velocity of this block would be 0. तो मान लो कि जो maximum extension है बच्चों
वो इधर कुछ आ गया है ना, दिस इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन। इसके बाद वेलोसिटी आपको हो गया जीरो। एट दिस पॉइंट द वेलोसिटी इट बिकम्स जीरो, अब ये आगे नहीं जाएगा, राइट। इट मींस दिस इज द केस ऑफ द मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। इसको बोलेंगे हम लोग एम्पलीट्यूड। ये जो एक्स होगा दिस इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, एंड फोर्स वुड बी एक्टिंग अपॉन दिस इन दिस डायरेक्शन। ये हमारा रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इस पे लग रहा होगा। नाउ दिस विल स्टार्ट कमिंग बैकवर्ड, ये वापस आना चालू हो जाएगा, राइट, बिकॉज नाउ द स्प्रिंग फोर्स विल पुल इट बैकवर्ड। तो द मोमेंट इट स्टार्ट्स कमिंग बैकवर्ड इट विल डेवलप सम वेलोसिटी, कुछ तो वेलोसिटी इसके पास डेवलप हो जाएगा। एंड व्हेन इट पासेस, व्हेन इट क्रॉसेस दिस मेन पोजीशन, उस टाइम पे स्प्रिंग माना कि वो नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा, इस पे स्प्रिंग फोर्स खत्म हो जाएगा, द स्प्रिंग फोर्स विल गेट ओवर, बट by this time it has gained a certain amount of velocity, which means it has gained a certain amount of kinetic energy. Because of that it is not going to stop here, यहां पर रुकेगा नहीं और ये वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव, अपने मूवमेंट को कंटिन्यू करता रहेगा। Let me repeat again, when the block comes to this mean position, let me draw that for you people, एक बार मैं उसको भी ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं। So when it comes to backward to the main position, when it comes back to the main position, it has developed a certain amount of velocity, due to which it is not going to stop here. In fact, it will keep on moving towards left. Right? All good? Now, because it has some kinetic energy, right? Spring elongation नहीं है, spring potential नहीं है, but इसके पास kinetic energy है. Okay, fair enough. Now it is gonna get compressed till a certain extent. किसी एक extent के बाद A अब ज्यादा कंप्रेस नहीं हो पाएगा, बिकॉज नाउ स्प्रिंग फोर्स इज गोना पुश इट बैकवर्ड कि तुम भाग जाओ, enough of it, I'm not going to take any compression from you any further, now that's going to be enough, all right? So अभी यहां पे क्या हो गया, मैक्सिमम कंप्रेशन, इससे ज्यादा कंप्रेस नहीं होगा। सो द फ्रॉम द मेन पोजीशन, इसको भी हम लोग बोलेंगे नेगेटिव एम्पलीट्यूड, इसको हम लोग बोल सकते हैं। And now again the force on this is going to be in this direction, the restoring force, spring force हमारा इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। If you look at all these four situations, we'll see that neutral position, all good. When it comes to the right side of the mean position, see the force is centered, pointed towards the mean position. When it is here, force is still pointed towards the mean position. जब इस पॉइंट से लेफ्ट में आता है तो फोर्स इज नाउ पॉइंटेड स्टिल टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। आप देख रहे हो ना? तो द थर्ड कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट इज रिस्टोरिंग फोर्स, एफ रिस्टोरिंग इज ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, इज ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। अगर वो ऐसा नहीं होगा तो एसएचएम नहीं होगा, और फॉरगेट अबाउट एसएचएम, ऑसिलेशन नहीं होगा, राइट? So these are the certain conditions which must be met for the oscillation to take place. Now, if I look at this situation, here the velocity is zero. It means the kinetic energy, bachcho, that is going to be zero. But the potential energy is maximum. We have maximum potential energy at this point because we have the maximum elongation in the spring. At this point, at the main position, it has no elongation, which means the potential energy is going to be zero. But the kinetic energy is going to be maximum over here. Kinetic energy हमारा maximum होगा। क्यों जी? क्योंकि till now the force was pulling it. Force और velocity direction, displacement direction same direction में था, तो that force would accelerate the body, right? तो यहां से लेकर यहां तक बॉडी का एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है? नॉट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बढ़ रहा है। All good? The moment it starts going this way, अब फोर्स ऐसे लग रहा है, the force is now opposite of the displacement, it means velocity decrease करेगा, और इस पॉइंट पे velocity बच्चों फिर से जीरो हो जाएगा। So we'll have zero kinetic energy and maximum potential energy. तो इस पूरे all these things, if I look at in one graph, इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो चलो इधर ही कर लेते हैं ना। If I just want to represent here, इसके पूरे मोशन and its kinetic energy and the potential energy को हम देखना चाहें तो कैसे देखते हैं, समझते हैं इसको ना। तो बच्चों, let us suppose this is your main position. Now when it starts from the main position and it is going towards rightward, अगर ये rightward जाता है from here to here till the positive extreme amplitude, इस केस में आप देखोगे कि इसका velocity क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। The velocity is decreasing, but the force is in the reverse direction is increasing. ये बात आप समझ पा रहे हो ना? फोर्स हमारा इंक्रीज कर रहा है।
क्लियर सी बात है, फोर्स इज इंक्रीजिंग, इट मींस एक्सेलरेशन क्या होगा, वो यहां से यहां तक एक्सेलरेशन जो होगा बच्चों वो इंक्रीज करेगा। डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट में, राइट। और जो वेलोसिटी होगा दैट वुड डिक्रीज एंड एट दिस पॉइंट द वेलोसिटी बिकम जीरो। मोमेंटरी रेस्ट का सिचुएशन आ गया, नाउ इट्स गोना कम बैक, इट्स गोना कम बैक फ्रॉम दिस एक्सट्रीम टिल द मेन पोजीशन, सी व्हाट्स गोना हैपन। आपका एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा होगा बट वेलोसिटी वुड इंक्रीज। अब देखो बात समझो, काइनेमेटिक्स में डील किया है, क्योंकि द फोर्स इज नाउ डिक्रीजिंग व्हिच मींस एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा, बट स्टिल देयर इज एक्सेलरेशन, एंड जहां पे एक्सेलरेशन है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी द वेलोसिटी शुड इंक्रीज। हां, उसका इंक्रीज होने का रेट कम जाएगा बट वो इंक्रीज तो कर ही रहा होगा, स्टिल दैट्स गोना बी इंक्रीजिंग। Acceleration is decreasing, which means rate of increase of the velocity would certainly be lower, but still there are going to be some increase in the velocity. हमें यहाँ पास एक increase of velocity का sense होगा ही होगा। तो हमारा जो acceleration है बच्चों वो तो decrease हो रहा है, but the velocity is increasing. And this is the point when we have the maximum velocity, और इस point को एक cross करता है when it crosses the main position। अब देखना क्या होगा। Now again the acceleration would फ्रॉम हियर, अब देखो क्या होगा कि एक्सेलरेशन हमारा फोर्स इंक्रीज कर रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, तो फोर्स वुड इंक्रीज, फोर्स इंक्रीज मींस एक्सेलरेशन वुड इंक्रीज और वेलोसिटी हमारा डिक्रीज करेगा। किस केस में, इस केस में ना फ्रॉम हियर टू हियर द फोर्स इज इंक्रीजिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। मैं अगर इसको एक इंटरमीडिएट पॉइंट्स को दिखा दूं, इफ आई जस्ट शो यू द इंटरमीडिएट पॉइंट, वेलोसिटी वाज हियर एंड द फोर्स वाज हियर। The force in this direction is increasing, which means velocity in this direction should decrease। वो केस हमारा यहाँ पे है। और वापस से when it comes to the extreme position, मान लो extreme position पे वो आ गया, अब क्या होगा, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, तो अब क्या होगा बच्चों, हमारा फोर्स तो डिक्रीज करेगा क्योंकि नाउ द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज डिक्रीजिंग, इट इज अचीविंग, इट इज रीचिंग, इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। और मेन पोजीशन पे एक्सटेंशन क्या होता है, x का वैल्यू 0 होता है, वी डू नॉट हैव एनी एक्सटेंशन, दैट्स अ न्यूट्रल नॉर्मल पोजीशन। तब क्या होगा, फोर्स तो डिक्रीज करेगा बट सिंस इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी वुड इंक्रीज, मींस एक्सेलरेशन वुड डिक्रीज एंड द वेलोसिटी शुड इंक्रीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको एक क्लैरिटी से पता होना चाहिए कि हाउ दिस थिंग्स हैपेंस और रिलेशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी कैसा, किस सेगमेंट में कैसा होता है। फर्स्ट फेज backing, second phase, went past the main position, third phase, coming back to the main position। ये हो गया आपका पूरा चारों का चार एक कंप्लीट साइकिल हो गया। हमने यहां से स्टार्ट किया, राइटवर्ड गया, लेफ्ट बैक टू पेविलियन, वेंट टू द लेफ्ट एक्सट्रीम, बैक टू द पेविलियन, एक पूरा एक साइकिल हुआ। और उस साइकिल को मैंने 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करा बच्चों, एंड आई जस्ट ट्राई टू शो यू हाउ द एक्सेलरेशन एंड द वेलोसिटीज वैरीज इन दीज 4 साइकिल्स। आई बिलीव आपको ये बात अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लो। ऑल गुड, चलिए नाउ अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट में वी गोना नाउ एंटर। देखो एसएचएम इज ऑल अबाउट द मोशन। हाँ, मोशन हार्मोनिक है, ऑसिलेटरी है, क्या है, बट है तो वो मोशन। इट मींस वी विल हैव द काइनेमेटिक्स व्हिच मींस विल बी हैविंग द मैथ्स इन्वॉल्वड, है ना। हमारा मैथमेटिक्स इसमें इन्वॉल्व रहेगा काइनेमेटिक्स के रेफरल में। अब हम उसको थोड़ा समझते हैं, अच्छी बात है। तो हमने मान लिया था कि द फोर्स was equals to how much, minus of kx, that's what we have seen, the restoring force and the displacements are in the opposite direction, इतना मेरे को पता है। अच्छा, फोर्स को क्या लिख सकते हो, मास इनटू ए तो लिख सकते हो ना, that is going to be minus of k into x, so acceleration could be given as what, minus of k upon m times of x। इस क्वांटिटी को हम लोग मानते हैं, मान लो ओमेगा स्क्वायर, ये बाद में खुद ब खुद you will get to understand कि ओमेगा स्क्वायर कैसे आया। as of now let's say ओमेगा स्क्वायर is going to be k upon m, इसको मान लो, इसके पीछे लिख लो लेट, एंड इफ आई राइट दैट आपको क्या मिलने वाला है, a शुड बी इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x। ये रिलेशन को पहले लिख लो, हम फिर बात को आगे बढ़ाएंगे, तो a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x। इस ओमेगा को वी गोना डिफाइन लेटर ऑन, ये क्या है, कैसे आया, कहां पे आया, वो हम सब समझेंगे, बट अभी के लिए मान लो ओमेगा स्क्वायर इज गिवन एज k अपॉन a, एक रेशियो है स्प्रिंग कांस्टेंट का और मास का, आप इसको लिख लो। चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। We know that since in the spring force क्या है, वेरिएबल फोर्स है, it depends upon the x पे डिपेंड करता है, right? In those circumstances, can I say बच्चों, acceleration could be written as what, v dv upon dx, ऐसा लिख सकते हैं ना।
लिख सकते हैं, या फिर चलो अभी थोड़ा और बात कर लेते हैं इसके बारे में ना, और थोड़ा बात करते हैं। अच्छा, इफ आई कंटिन्यू फ्रॉम हियर इटसेल्फ, हम थोड़ा इधर ही बात कर लें। एक्सेलरेशन तो हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, दैट्स आल्सो वी कैन राइट, लेट मी यूज दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। कैन आई जस्ट से दैट बच्चों, वी कैन बी हैविंग समथिंग लाइक डी स्क्वायर एक्स upon dt square equals to negative of omega square x, which implies that d square x upon dt square is plus omega square x is equals to 0. Well, you can see that this is a second order differential equation. This is a second order differential equation, or if we have any equation in this format, that is going to represent a simple harmonic motion. वो एक simple harmonic motion को represent करता है. So this is called as a simple harmonic motion. ये हमारा एक simple harmonic motion को represent करता है. Now we can trying to find the solution for this. solution निकालेंगे हम और देखेंगे कि how we can relate the position, time, velocity, acceleration, ये सारे parameters of the motion को हम कैसे आपस में relate कर पाए. Well, that's what is SHM all about. It is a motion. तो motion में क्या देखते हैं? We talk about the position, we talk about the velocity, we talk about the acceleration of the particle. If I know all this stuff, we can easily define the motion और इसके trajectory को, इसके position को, everything about the motion could be defined if I know all the motional parameters. और यहाँ पे भी वही कुछ अलग बात नहीं है. यहाँ भी हमारे पास मोशन है तो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, वेरिएंट टू टाइम, इनवेरिएंट टू टाइम, तो ये सब हमको देखना है. ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन निकालने का हम लोग प्रयास करेंगे बच्चों कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, जो कि हमारे आगे के प्रोसेस में हम उसको यूज करेंगे और हमको दिखाएगा. दैट वुड शो यू दिस इज अ ट्रैजेक्टरी. एक हमारा एक इक्वेशन ऑफ एसएचएम है ना. आप बात समझ रहे हो ना. इसमें t आप डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट में कुछ भी है, well, that's going to be your equation of SHM. अच्छी बात. हम थोड़ा और इसको आगे देखते हैं, समझते हैं. Acceleration could be written as what? V dv upon dx. You all know that, right? इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है, right? अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा डॉटेड देख लेते हैं. Let us just put the segregate this. Could I just say that V dv is equals to a times of dx. Okay, let me just integrate. Now the point is the v is going from where to where, x is going from where to where, ये अपने को पता होना चाहिए. Now for that let me just take the help of this part of the board and I'm going to show you a couple of things. So let me just erase this बच्चों. So considering that spring block system का motion को हम दिमाग में रखते हुए उसको थोड़ा सा I would just try to use that. Let's say that guys, let's say that जो particle है that is going from away from the mean position, this is your mean position and हमने इसको mean position मान लिया. This is the mean position. Let us say that the particle is here at any time t is equals to 0. At time t is equals to 0, the particle is here and moving with the velocity of, let's suppose, v. And this is the extremes. These are the extremes, bachcho, right? And this is your position, let's suppose x. This is your position x. किसी x पे उसका वेलोसिटी कितना है? 0 है, सॉरी v है. At any time t is equals to 0. हमने इसको यहां से स्टार्ट किया. We have started from here. I know that when it reaches the extreme points, over here velocity would be how much? 0 हो जाएगा. And that extreme point is going to be nothing but x would be equals to the amplitude of that oscillation. इतनी बात हमको इस समझ में आ रही है ना. इतनी बात हमको इस समझ में आ रही है कि t is equals to 0, इसको हटा दो, गीला हो रखे है ना. At t is equals to 0, अच्छा t is equals to 0 मैंने लिखा नहीं, लिख देते हैं. At t is equals to 0, this is my observation. The body is having velocity of v and it is a position of x. किसी position x पे पहुंच रखा है body, है ना. So now setting the limits would be easy for me. Initial velocity is how much? V. Final velocity when it reaches the amplitude, extreme position, well that's going to be 0. Initially आपका distance कितना था बच्चों? x था. Initial position x था और final position is going to be equals to its amplitude a. Now let us do the integration process. V dv, that means v square upon 2. Limit we can set from v to 0. Well that's going to be how much? a. अच्छा, a को थोड़ा हम लोग क्या कर सकते हैं? Can I just use this relation बच्चों? a could be written as what? Negative of omega square x. So let me put that over here. So that's going to be how much? Negative of omega square x dx. Let me just do that. Okay, तो मैंने इस तरफ इंटीग्रेट कर दिया है और हटा दो इसको ना. That's not mathematically correct thing.
वी टी वी ना, हमने ऐसा रख लिया इसको, कोई दिक्कत नहीं, इसको v जीरो कर लो ना, ठीक है। अभी ठीक है, नाउ x was from x to amplitude a. Now this is going to be how much? V square upon 2. Limit is set from v to 0. Well, that's going to be negative omega square. X integration is going to be x square upon 2. Limit is set from x to the amplitude a. If I substitute the limit, bachcho, I'm going to get what? Negative 0 minus v square upon 2. And this is going to be minus of omega square x square. Okay, a square, my bad, है ना, a square minus x square, है ना, upon 2. 2 I just took it outside. Now this 2 should be cancelled. In fact, these two negatives should also be cancelled, which means velocity v could be given as what? Omega root of a square minus x square. अच्छी बात है सर, ये क्या कर क्या रहे हो, है ना? Could be a very obvious question in your mind. मैं समझाता हूं, देखो, if this block is at a position x, मानते हैं ना, we know that position x पे उसका पोजीशन x पे उसका वेलोसिटी आपका v दे रखा है, ठीक है। Let's say the object is here at any distance, at any position, मान लो इसको x dash, इस पॉइंट पे, at this point, what is going to be the velocity of this particle? How we could know? ये दिखाएगा। तो this is actually relating velocity of the particle and the position of the particle in the oscillatory motion. So this represents, this tells you velocity of particle at any position x, दिखाता है आपको, क्लियर है? तो दिस शोज यू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी पोजीशन x. तो कुल मिला के मेरे को इतना तो समझ में आ रहा है सर, अब कहीं मेरे को वो काइनेमेटिक्स का xt, at, vt ग्राफ का रिलेशन तो नहीं पढ़ा रहे हो बच्चों? हाँ, वही पढ़ा रहा हूं। तो दिस इज शोइंग यू व्हाट, ये हमारा vx रिलेशन है। आई टोल्ड यू वी हैव सिक्स रिलेशन, xt, vt, at, xa, vx और एक av, सिक्स रिलेशन था, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोना डू ओवर हियर। SHM में हम लोग वही सब पढ़ने वाले हैं बिफोर वी जंप इनटू द फेजर डायग्राम। तो दिस एक्चुअली हैव गिवन यू द वेलोसिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट relation of the particle executing the oscillatory motion. So this is going to give the velocity of the particle at any position x. इतनी बात आपको समझ में आ रही है? और बच्चों यहां पे देखो आपको क्या दिख रहा है, ax रिलेशन दिख रहा है, दिस इज योर a और x का रिलेशन दिख रहा है। अच्छी बात है ना, ये सारी चीज आपको दिख रहा है। लेट मी कंटिन्यू फ्रॉम हियर। अब मैं इससे थोड़ा कंटिन्यू करता हूं, ठीक है? तो लेट मी यूज दिस पार्ट। सो फ्रॉम देयर कैन आई से v स्क्वायर, और ऐसे रहने दो, v ओमेगा है ना, अगर हम इसको कर दें यहां पे v है ना, अच्छा इस v को हम लिख सकते हैं क्या? इस v को लिख सकते हैं क्या बच्चों? dx अपॉन dt, well that is going to be how much? ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। आई थिंक वी कैन राइट दिस वे, आराम से मजे में इसको लिख सकते हैं, ठीक है? नाउ लेट्स ब्रिंग इट ओवर हियर, इट शुड बी 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, है ना, एंड dx दैट शुड बी ओमेगा टाइम्स ऑफ dt। अच्छी बात है, इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेशन का देखो कहां से कहां तक करेंगे, इसको हम लोग कहां से कहां तक करेंगे। मैं थोड़ा इसको इरेज कर दूं बच्चों, है ना, थोड़ा एक क्लैरिटी दिख जाएगा बोर्ड में। ऐसे एवरीथिंग इज गोना बी काइंड ऑफ मिक्स्ड अप, सारा कुछ हौच पौच हो जाएगा ना। आप बोलोगे सर थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लो, तो भैया ये लो, है ना। तो अब इसको I'm just रिमूविंग इट, है ना, मैं थोड़ा इसको साफ करता हूं। अब ध्यान से देखना इस बात को कि मान लो कि इनिशियली हमारा ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट पे था, एक्स पे था, है ना, इट इज नॉट एट द मेन पोजीशन, किसी एक्स पॉइंट पे है, तो हम इसको मान लेंगे भैया इसको एक्स नॉट मान लो, ठीक है, एक्स नॉट मान लो। In the previous case, we have only taken the limits from this position to the extreme position. अभी मैं किसी भी एक पोजीशन, I just want to understand कि starting from a certain position, अगर this is my initial position और किसी एक ऐसा पोजीशन पे गया जिसका distance is x from the main position. So this is my initial position और ये हमारा एक कोई भी random position है. This is the point of observation जहां पे हम observe करना चाहते हैं. तो from x naught to x it is going to the limit. This is going to be what from what? X naught to x, but the time is going to be from 0 to any time t.
It's going to be from 0 to any time t, because this is the point from where the body is starting. So that's a point, initial point to time t is going to be 0, and at any time t it reaches over here. तो हमने टाइम लिमिट सेट किया 0 to t. एक कैमरे में आ रहा है ना, लेट मी जस्ट चेक दिस आउट. ग्रेट, एक कैमरे में आ रहा है. ऑलराइट बच्चों, आई बिलीव यू नो द इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग. कितना हो जाएगा? दैट वुड बी साइन इनवर्स ऑफ x upon a, right? And the limit should be from x naught to x, and that's going to be omega t. Limit is going to be from t to 0 to t. चलो एक स्टेप और आपके लिए मैंने लिख दिया. Well, this is going to be how much? Sine inverse of x upon a minus sine inverse of x naught upon a. Well, that's going to be omega t. So if I just want to write sine inverse of x upon a, that should be omega of t plus sine inverse x naught upon a. अच्छी बात है. Which clearly means बच्चों, अगर मैं x को लिखना चाहूं तो x क्या लिख सकते हैं? साइन उस तरफ जाएगा तो दैट वुड बी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स नॉट अपॉन ए, और जो एम्पलीट्यूड दैट वुड बी हियर. ओहो, कुछ न कुछ मेरे को इस साइन के फॉर्म में दिख रहा है. इट इज नाउ कन्वर्टिंग टू द साइन ग्राफ. नाउ दिस इज कॉल्ड द इनिशियल फेज. इसको बोलते हैं फेज कांस्टेंट, और बोल सकते हो इनिशियल फेज. इनिशियल फेज क्योंकि वो उसका फेज मीन से स्टार्ट नहीं होके स्टार्टिंग फ्रॉम सम डिफरेंट पॉइंट, इसको हम लोग बोल सकते हैं फेज कांस्टेंट. इसको हम लोग बच्चों बोल सकते हैं. तो अभी देखो इक्वेशन क्या बन गया मेरे को. आई कुड से दैट x could be written as a sin omega t plus phi naught, a sin of omega t plus phi. Now phi is the phase constant. हमारा इनिशियल फेज है किसी भी पोजीशन, किसी भी पार्टिकल का which is executing an oscillatory motion, उसका हमने इनिशियल फेज मान लिया phi, है ना. तो दिस इज अनदर इक्वेशन ऑफ योर्स, एंड दिस इज द वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. तो क्या दिखाता है आपको? दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम t. किसी टाइम t पे उसका पोजीशन कितना है, कहां है वो बॉडी. सो वी हैड सीन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी डिस्टेंस x, और अगर मेरे को यही पता चल जाए कि भैया वो किसी उसका डिस्टेंस कितना है किसी टाइम t पे, तो कैन आई फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी इज डिपेंडेंट अपॉन x, राइट, और x डिपेंडेंट है हमारा टाइम पे. तो टाइम पता हो तो डिस्टेंस आई कैन फाइंड, व्हिच आई कैन पुट इट हियर एंड गेट द वेलोसिटी. एक तरीका तो ये हो गया. दूसरा तरीका, इफ आई जस्ट डिफरेंशिएट दिस, इसको मैं डिफरेंशिएट कर लूंगा बच्चों, तो ध्यान से मेरी बातों को देखते रहना. तो इफ आई डिफरेंशिएट दिस, दैट वुड बी व्हाट? वेलोसिटी, because v is going to be dx upon dt, and that should be a as it is. sin become cos omega, बाहर हो जाएगा तो क्या हो गया? a omega cos of omega t plus phi. So this gives you the velocity of the particle at any time t. किसी टाइम t पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है इन दिस पर्टिकुलर SHM मोशन, वी कैन इजीली फाइंड, मजे में निकाल सकते हैं, राइट? क्योंकि these are nothing but the solution of dx square x upon dt square plus omega square x is equal to 0, and that was the equation of SHM, simple harmonic motion का वो इक्वेशन था, and these are the solutions of that simple harmonic motion. ये सॉल्यूशन आपको वेलोसिटी दिखा रहा है, ये वाला सॉल्यूशन आपको क्या दिखा रहा है? उसका पोजीशन दिखा रहा है, ये आपको वेलोसिटी दिखा रहा है, और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं. वी कैन आल्सो फाइंड द एक्सेलरेशन. हाउ? बाय डिफरेंशिएटिंग दिस फॉर वन मोर टाइम. तो बच्चों ये एक्सेलरेशन करेंगे तो दैट वुड बी dv upon dt, प्यारे बच्चों, एंड दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? लेट मी यूज दिस कलर. cos becomes माइनस, माइनस साइन, ओमेगा बाहर आएगा, a ओमेगा हो जाएगा, तो a ओमेगा स्क्वायर cos of omega t plus phi, well that is going to be the acceleration of the particle in the SHM motion. इतना तो बात समझ में आ रहा है मेरे को, है ना सर? अच्छी बात है. ओमेगा स्क्वायर बाहर कर दो. इफ यू लुक एट दिस, अच्छा सॉरी मैंने गलत करा, इसको साइन होगा ना बच्चों, ये हो जाएगा आपका साइन. ओमेगा स्क्वायर को जस्ट टेक इट आउट, यू शुड बी हैविंग व्हाट? नेगेटिव a sin omega t plus phi, and a sin omega t plus phi is nothing but x, which means प्यारे बच्चों this could be now written as what? Negative of omega square x. और ये रिलेशन मैं आपको इनिशियल स्टार्टिंग में ही दिखा रखा है कि ओमेगा कैसे क्या आया था, ओमेगा कैसे क्या आया था. इतनी बात समझ में आ रही है आपको, है ना? तो ये हमको समझ में आ रहा है कि हमारा जो रिलेशन है SHM में, अच्छी बात है. चलो मार्कर बोर्ड की जगह पेन शेड पे लिखा जा रहा है. एनीवेज, तो a इज गोना बी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x. हमने ऑलरेडी देख रखा है, और अब देखो मैं ओमेगा का वैल्यू अभी आपको यहाँ पे निकाल कर दिखाता हूं. आप इसको पहले नोट कर लो, आप इसको पहले नोट कर लो.
आई बिलीव आपको ये बातें समझ में आ रही होगी कि दिस एसएचएम इज नथिंग बट राइटिंग द एक्सटी एटी एबी वीएक्स और एक्स का जो इक्वेशंस वी हैव, 6 रिलेशन वी हैव, ये वही है, कुछ नया कुछ अलग नहीं है बच्चों, है ना। चलिए आप इसको लिख लो, हो गया। अब देखो थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं ना, थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम इधर। हमने देखा वी हैड सीन दैट स्प्रिंग फोर्स क्या था, स्प्रिंग फोर्स वाज नेगेटिव ऑफ के एक्स, है ना, राइट। अच्छा बच्चों, फोर्स इज व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन, वेल दैट्स गोना बी नेगेटिव ऑफ के एक्स, है ना, कोई दिक्कत। तो एक्सेलरेशन शुड बी हाउ मच, नेगेटिव ऑफ के अपॉन एम टाइम्स ऑफ एक्स। इनको और इन भाई साहब को इक्वेट कर दोगे, कंपेयर करोगे तो क्या दिखेगा, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट है ना। व्हिच मींस ऑन कंपेयरिंग दीस टू यू कैन सी दैट नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर शुड बी नेगेटिव के अपॉन एम, और टिक टिका टिक, तो ओमेगा क्या आ गया बच्चों, ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ के अपॉन एम। मैंने आपको ये अच्छे से बात समझा रखी थी, ये मैंने बात आपको समझाया था कि आप इसको नोट कर लो, हम इसको डिराइव करेंगे, एंड यू कैन सी ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम, राइट। अच्छी बात है, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों इससे, और आपको एक बहुत ही मजेदार बात अभी समझ को आएगा कि भैया अगर मेरे पास ओमेगा है और सिंस द बॉडी इज ऑसिलेटिंग, इट इज डूइंग एग्जीक्यूटिंग सम एसएचएम मोशन कर रहा है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो इसका कुछ टाइम पीरियड भी होगा, राइट। इट शुड बी हैविंग सम टाइम पीरियड, बिकॉज एवरी ऑसिलेटरी मोशन इफ इट इज अनडैम्प्ड वो एक फिक्स्ड टाइम पे अपने आप को रिपीट करता है, तो उसका टाइम पीरियड भी होगा, राइट। तो बच्चों वी नो दैट टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू कितना है, रूट ऑफ के अपॉन एम, तो टी शुड बी इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा नीचे करोगे तो एम अपॉन के चला जाएगा ना। मंटू कुमार है ना, वन ऑफ माय फ्रेंड, जब मैं छोटा बच्चा था स्कूल में था तो मेरा एक दोस्त था मंटू कुमार, तो मैंने इसको याद रखा एम अपॉन के, बिकॉज क्वाइट सम टाइम यू गेट कंफ्यूज कि के ऊपर होगा कि एम नीचे होगा, ऊपर होगा ना। तो मंटू कुमार मेरा दोस्त, एंड मैंने उसके नाम पे इसको एक याद करने का वियर्ड सा तरीका रख लिया है, मंटू कुमार, है ना, मंटू ऊपर कुमार नीचे, तो 2 पाई एम अपॉन के, एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव हैड इट मल्टीपल टाइम्स, आपने इसको यूज करा होगा या फिर आगे करोगे इफ यू हैव नॉट डन दिस एसएचएम। तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन का, लीनियर मोशन का, नो, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ लीनियर एसएचएम। अभी तक हम सारे चर्चा को लीनियर में देख रहे थे ना, अभी तक हमने सारे चर्चा को लीनियर में देखा है, हमने सारे चर्चा को लीनियर में देखा है, लिख लो। नाउ आई बिलीव आपको थोड़ा लीनियर एसएचएम समझ में अभी तक आया होगा, एंड वी हैव एक्चुअली डिराइव्ड मल्टीपल रिलेशंस, हमने डिराइव कर लिया है। आई थिंक कुछ कुछ बचा हुआ है, उसको अभी डिराइव कर लेते हैं, और आपको सारे 6 जो रिलेशंस हैं वो आपको पता होना चाहिए, तो फिर ये कहानी बहुत आसान लगेगा। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स देगा, कुछ भी देगा, आप उसको दाएं बाएं हिला दोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, मुश्किल आपको नहीं आएगी, बट द आइडिया शुड बी वेरी वेरी क्लियर, बच्चों के दिमाग में होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी तक व्हाट वी हैव डन सो फार इज, हमने देख रखा है, एक आप इसको समरी कर लो, समराइज कर लो। अच्छा, समराइज करने से पहले आई थिंक हमने एक रिलेशन को मिस करा है ना, अच्छा पहले देख लेते हैं व्हाट ऑल वी हैव डन, जो नहीं करा हम उसको करेंगे। So the first relation that you have got to see was A is equals to minus of omega square x. That was the first relation that we have got. Second was we have got that V is equals to आपका omega times of A square minus x square था ना। अच्छा इसी में देख लो, अगर x जो हो जाएगा that becomes amplitude if the body is at the extreme when x becomes equals to a square minus a square becomes 0, omega times 0 0, velocity 0। तो आपको इसी भी बात समझ में आनी चाहिए कि सर एक्सट्रीम पे वेलोसिटी कितना होगा, वो 0 हो जाएगा, ये हमने देख रखा था, राइट। उसके बाद हमने देखा पोजीशन टाइम ग्राफ रिलेशन, सॉरी, x इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5, हमने इसको भी देख रखा था। देन वी हैव सीन व्हाट द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या था, आप इसको a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t प्लस 5 वाज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। आल्सो वी हैड सीन द एक्सेलरेशन, अच्छा 3 हो गया ना, 4 एक्सेलरेशन हमने देखा था, दैट वाज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, सेम थिंग आई एम जस्ट राइटिंग इन द फॉर्मेट ऑफ टाइम वाला फॉर्मेट है ना, तो माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस 5। सो दीज वर द रिलेशंस दैट वी हैड सीन सो फार, और हमने अभी तक कुछ किया नहीं है ना, एक हो गया, ये हो गया। अच्छा, और आपको क्या देखा था, हाँ एक और देख लो आप अगर इसके टर्म्स में देखें, a इज इक्वल्स टू व्हाट, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल्स टू k अपॉन m है ना, ओमेगा इज इक्वल्स टू
के अपॉन एम होता है, राइट। तो आप ए को लिख सकते हो ना माइनस ऑफ के अपॉन एम टाइम्स ऑफ एक्स, है ना। आप ऐसे लिख सकते हो इसको, ए इज इक्वल टू माइनस बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू के अपॉन एम। आपको पता है ना ओमेगा जो कांस्टेंट था बच्चों, दैट वाज इक्वल टू हाउ मच, ओमेगा वाज इक्वल टू के अपॉन एम, राइट। इट मींस ओमेगा वाज इक्वल टू रूट ऑफ के अपॉन एम, तभी जाके मंटू कुमार बनता है वो ना। तो हमने देखा, ऑल गुड। तो वी हैव व्हाट, हमारे पास एक्स रिलेशन है, हमारे पास Vx रिलेशन है, वी हैव xt रिलेशन, वी हैव xt रिलेशन, वी हैव Vt, हमारे पास Vt रिलेशन भी है, वी हैव At रिलेशन भी हमारे पास, ओके बच्चों, वी हैव At रिलेशन ऑल्सो। तो क्या बच गया, xt Vt At Vx Ax, अच्छा Av बच गया, वी हैव Av है ना। तो चलो हम अब थोड़ा Av की तरफ बढ़ते हैं ना। लेट अस ट्राई एंड फिगर आउट द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड द वेलोसिटी, हम उसको भी डिफाइन कर लेंगे, है ना। चलिए, इजी है, मुश्किल नहीं है, ओके। अच्छा बच्चों, टू फाइंड ए वी है ना, मेरे को चाहिए ए वी चाहिए ना। तो ऐसा काम करते हैं ना, आप इन बाई दो को देख लो, लुक एट दीस टू, वी नीड ए वी बिकॉज एवरीथिंग एल्स वी हैव, ए वी इज मिसिंग, है ना। जस्ट हैव अ लुक एट दिस इक्वेशन नंबर 4 and 5, 4 and 5 को देखो, लुक एट इक्वेशन नंबर 4 and 5. Could I just say, my dear kids, cos of this from equation 4, you know, from 4, cos of omega t plus 5 should be given as what, v upon a omega, v upon a omega, अच्छी बात है। और आप देखोगे from here sin of omega t plus 5 should be equals to how much, a upon negative of a omega square, ठीक है। cos sin square ऐड कर दो, स्क्वायर बोथ द साइड एंड ऐड इट। तो मोमेंट यू डू द स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ये दोनों तो बाई 1 बन जाएगा, इस तरफ क्या आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, दिस बिकम प्लस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ओमेगा टू द पावर ऑफ 4। भैया ये आपका एलिप्स बन गया है, दिस इज नथिंग बट द रिलेशन ऑफ AV, ये आपका AV रिलेशन है और हमारा फाइनल रिलेशन भी मिल गया है। सो बेसिकली वी हैव गॉट ऑल द 6 रिलेशन, एक्सटीवीटी, AT, AV, AV, VX और AX का हमने सारा 6 रिलेशंस निकाल लिया है। और अगर ये हमको पता है और हमने टाइम पीरियड्स भी निकाल लिया कि हाउ इन द लीनियर एसएचएम टाइम पीरियड क्या होता है। नाउ अभी क्विकली हम लोग बात करेंगे एंगुलर एसएचएम का, वी विल टॉक अबाउट द एंगुलर एसएचएम। देखो एंगुलर में कुछ खास बदलाव नहीं होगा, विल नॉट हैव अ वेरी डिवास्टेटिंग चेंजेस। थोड़ा सा फर्क होगा कि यहाँ पे जो लीनियर एसएचएम में वी हैव द डिस्टेंस, वहां पे क्या हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो एक बात आप तो पहले समझ लो उसको अच्छे से बच्चों की, जैसे एक सिंपल एग्जांपल पेंडुलम को लेते हैं। दिस इज द मेन पोजीशन ऑफ द पेंडुलम, दिख रहा होगा आपको, है ना, मेन पोजीशन ऑफ द पेंडुलम। इफ इट गोज लाइक दिस, तो यहाँ पे एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा एंड वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट हैज टू बी टेकन फ्रॉम द सेंटर पोजीशन, राइट। तो ऐसा एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों इस तरफ, राइट। After reaching to a certain extent, now it will be trying to come back to the same position, जो हमारा टॉर्क लग रहा होगा इस पे, and that should be about this direction. टॉर्क इसके opposite लगेगा, which will create some angular acceleration alpha. So the alpha and the theta are in the opposite direction. Be careful with this. जैसे हमारा फोर्स और डिस्टेंस ऑपोजिट था, यहाँ पे आपका टॉर्क और थीटा ऑपोजिट होगा और अल्फा का डायरेक्शन और सेंस ऑफ रोटेशन टॉर्क का भी सेम ही होगा इस केस में ना। तो टॉर्क जो इस पे लग रहा होगा हम उसको देखेंगे, टॉर्क का डायरेक्शन कैसा होगा। आप देखो अगर यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा mg ऑब्वियसली एंड देयर गोना बी टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो ये जो mg का जो कंपोनेंट होगा बच्चों, वन गोना बी लाइक दिस, mg अगर ये थीटा है और इसको 90 डिग्री है ना, ये थीटा है तो इवन दिस इज गोना बी थीटा, तो mg cos theta would be acting upon this way and mg sin theta should be acting in this way. Now this force is going to create a torque about this axis of rotation. मैंने अभी टॉर्क में कुछ दिन पहले ही पढ़ाया आपको कि इस एक्सिस के अबाउट एक टॉर्क क्रिएट होगा। टॉर्क आपको निकालना आता है, कैसा सेंस रहेगा, क्लॉकवाइज में रहेगा, राइट, क्लॉकवाइज में रहेगा, इट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एफ। और अगर हम ऐसे करते हैं इसको आर, अगर देख लो इसमें, है ना, और अब पॉइंट ऑफ इसको हम ऐसे करेंगे, आर इस तरफ रखो, फोर्स हमारा इस तरफ लग रहा है तो अंदर की ओर है, और अंदर की ओर आता है तो क्लॉकवाइज लगता है। बाहर की ओर फोर्स टॉर्क है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, मैंने आपको पढ़ा रखा है पिछले क्लास में, टॉर्क वाले क्लास में, है ना। तो इस तरफ एक टॉर्क लग रहा होगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों इस तरफ है क्लॉकवाइज
sorry, anti-clockwise, and torque is clockwise. So the direction of torque और ये जो हमारा थीटा है वो ऑपोजिट है. तो आपका जो पहला इक्वेशन होना चाहिए इसमें टाउ वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस ऑफ के थीटा. आपको ये अच्छे से दिमाग में होना चाहिए बच्चों. ऑल गुड. और बाकी जो भी है व्हाटएवर वी हैव वो हमारा चुपचाप आ जाएगा इस फॉर्मेट में डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज गोना बी इक्वल्स टू 0. ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ द एसएचएम इन द एंगुलर फॉर्मेट. तो हमारा एंगुलर एसएचएम का ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसको आप सॉल्व करोगे तो फिर से हमको वही राम कहानी मिलेगा. और मैं जल्दी से आपको लिख देता हूं. तो x होगा, सॉरी थीटा है ना, x की जगह हम थीटा रखेंगे. तो थीटा शुड बी a ओमेगा साइन ऑफ माय बैड ओमेगा t plus 5. Likewise, if you want to find the angular velocity omega should be आपका हो जाएगा बच्चों a omega cos of omega t plus phi. And then if you want to find the angular acceleration alpha should be how much? Minus of a omega square sin of omega t plus phi. आपको बेसिक बातें समझ में आ रही होगी ना. इसको आप जल्दी से नोट कर लो, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इसको भी देख लेंगे, है ना. हो गया. अच्छा, आपने ऑलरेडी देख रहा है कि टाउ इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई अल्फा होता है. वी नो दैट टाउ टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा होता है, ये अपने को पता है. ऑल गुड. एंड टाउ ओवर हियर इज हाउ मच, माइनस के थीटा. तो कैन आई से दैट आई अल्फा शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के थीटा. कोई दिक्कत नहीं है ना. तो बूम 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 अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के अपॉन आई इंटू थीटा. इतनी बात तो हमको इस समझ में आ गई. आप इसको पहले तो लिख लो, अल्फा इज इक्वल टू माइनस के, जो भी हमारा ऐसा हो गया ना. करेक्ट है बच्चों. अच्छी बात है. अब हमको देखना कि आई क्या है. आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. के हमारा रेडियस ऑफ गायरेक्शन नहीं है, स्प्रिंग कांस्टेंट है. कि हम लोग नॉर्मली रेडियस ऑफ गायरेक्शन को यूज करके लिखते हैं, तो वो हमारा वो नहीं है. अब इफ यू लुक एट दिस वन, अगर आप इसको देखोगे, इफ यू लुक एट दिस वन अल्फा, इस इक्वेशन को देखो बच्चों. अल्फा कुड बी रिटन एज व्हाट, नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर, और ये पूरा कितना हो गया, थीटा हो गया, राइट. तो इफ आई लुक एट फ्रॉम हियर, अल्फा शुड बी रिटन एज व्हाट, नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा, है ना. ये तो बेसिक वही सेम कहानी रिपीट हो रहा है जो लीनियर में था. Now let us do the comparison among these two. इसको हम दोनों को, इस दोनों भाई साहब को कंपैरिजन में डालेंगे तो क्या मिल जाएगा, k अपॉन i should be equals to ओमेगा. चलो अच्छी बात है. तो सर ओमेगा स्क्वायर is gonna be equals to how much? On the comparison of these two, you're gonna get what? Omega square should be k upon i. Oh. It means omega should be how much? Root of k upon i. क्या बात है सर, है ना. ठीक है. तो ये हमारा हो गया रिलेशन ऑफ ओमेगा k एंड i. अब थोड़ा और समझते हैं कि हम टाइम पीरियड इस ऑसिलेशंस का कैसे निकाल सकते हैं. बाकी आपको सारा कुछ बात तो समझ में आ गया होगा ना. तो मुश्किल तो यहाँ पे कुछ आपको दिख नहीं रहा है, करेक्ट. चलिए अब इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं. ये भैया हट जाओ, है ना. फिर हम थोड़ा सा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम निकाल लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज का क्लास थोड़ा सा लंबा जा रहा है, नो डाउट, बट आपको आज सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, ताकि इस पार्ट को हम पूरा बेसिक्स को कवर अप कर लें. Then we can move forward to the phasor diagram and all. इसको क्यों ही छोड़ना है. चलो आगे लिख लेते हैं इसको ना, इसको आगे लिख लेते हैं. तो हमने निकाल लिया कि ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ के अपॉन आई, है ना. अब एक सिंपल पेंडुलम को ध्यान से देख लो, या फिर इसी को यूज कर लेते ना, या फिर उसी को यूज कर लो ना. यहाँ पर क्या दिक्कत है. तो हमारा फोर्स क्या हो गया, एम जी साइन थीटा, और इसको लेंथ मान लो एल इसका. तो टॉर्क क्या हो जाएगा बच्चों, तो टॉर्क उस केस में देख लो, टाउ जो आपको हो जाएगा, टाउ जो हो जाएगा आर क्रॉस एफ. आर एफ, द एंगल बिटवीन द आर एंड एफ इज मच 90 डिग्री. तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टॉर्क ऐसे लिख सकते हो, एल एम जी साइन थीटा, एल एम जी साइन थीटा, है ना. वन मोर थिंग यू शुड अंडरस्टैंड, दिस थीटा इज वेरी स्मॉल. ये छोटा सा रेडियन में होता है और ये काफी छोटा वैल्यू लिया जाता है पेंडुलम में. इफ आई टेक दिस अ बिगर वैल्यू ना, तो दैट्स नॉट गोना बी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम. और थोड़ा इस थ्रेड में उसमें एक आपको श्रिंकनेस आ जाएगा, एंड दैट द टेंशन विल बी गॉन, वो चला जाता है ना. तो दिस एंगल इज टेकन एज अ वेरी वेरी स्मॉल एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, एंड वी नो दैट इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, if theta is in radian
इज वेरी स्मॉल, रेडियन में लिख लो भैया, 1 डिग्री 2 डिग्री कर दोगे तुम लोग, है ना, in radian, है ना, theta is very very small, then sin theta could approximately be written as theta, and even that is also approximated to tan of theta. तो इस sin theta को आप theta easily लिख सकते हो for the small value of theta, which means tau जो हो जाएगा बच्चों आपका हो गया mgl theta. इतनी बात आपको थोड़ी समझ में आ रही होगी ना, tau is equals to आपको हो गया mgl है ना थीटा. अच्छी बात है. टाउ का वैल्यू क्या होता है, आई अल्फा भी होता है, टाउ इज आल्सो नोन एज आई अल्फा, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर में देख रखा है, रोटेशन में देख रखा है. तो टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, दैट कुड बी गिवन एज व्हाट, mgl थीटा. अच्छी बात है. मींस अल्फा शुड बी गिवन एज व्हाट, क्यों अल्फा चाहिए मेरे को, अल्फा क्यों चाहिए, मेरे को रिलेशन निकालना है इसलिए मेरे को अल्फा चाहिए होगा. तो mgl थीटा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया नीचे आएगा. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया बच्चों, अगर इसको हमने मास माना है, m माना है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, ml स्क्वायर, mr स्क्वायर, ml स्क्वायर. रोटेशन चैप्टर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो देख लो. दैट्स गोना बी हाउ मच, ml स्क्वायर. तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, a तो गया, m गया, मींस अल्फा व्हाट आई एम गेटिंग एट द एंड इज नथिंग बट g थीटा अपॉन l. सही है ना, g थीटा अपॉन l. अच्छा एक बात और, इस अल्फा का डायरेक्शन इस थीटा के डायरेक्शन की ऑपोजिट है, हमने उसको स्टार्टिंग में मेंशन कर रखा था, राइट. सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर थीटा को यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे होते तो एक नेगेटिव साइन आ रहा होता, राइट, बिकॉज थीटा ऐसे है तो टाउ ऐसे है. तो आप इसको नेगेटिव साइन को कंटिन्यू कर दो, नेगेटिव इधर हो गया, ठीक है जी, ये हमारा हो गया, है ना. तो अगर इफ आई लुक एट दिस इक्वेशन अल्फा को और इस इक्वेशन को देखते हैं, इसको देखेंगे तो आपको दिख रहा है कुछ कुछ कि जो k अपॉन i का वैल्यू है, आई कुड राइट इन टर्म्स ऑफ l and g के टर्म्स में हम लोग इसको वी कैन राइट इट इजीली. तो लुक एट दीस टू बच्चों, तो क्या हो गया, g अपॉन l इज नथिंग बट इक्वल्स टू k अपॉन i. क्या बात है, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं अभी, देन दैट मींस व्हिच इंप्लाइज दैट k अपॉन i का वैल्यू हो जाएगा, आपका ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ g अपॉन l. ऑल गुड. Now that we know the value of omega in terms of g and the length of the the rod or the string of the pendulum, I can find the time period. Time period क्या होता है, omega upon 2 pi ना, sorry ना 2 pi upon omega, my bad. तो time period क्या होता है, time period is given as 2 pi upon omega. तो बच्चों क्या हो गया, 2 pi, भाई साहब l ऊपर चला जाएगा और g नीचे आ जाएगा, lg. तो the time period of a simple pendulum, आपने बहुत बार इसको पढ़ा होगा, अंडर रूट ऑफ 2 pi ऑफ अंडर रूट ऑफ l अपॉन g. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझ में आज आ गया होगा कि टाइम पीरियड ऑफ द एंगुलर SHM, एंड हमने निकाला था मंटू कुमार 2 pi m अपॉन k वाज द टाइम पीरियड ऑफ द लीनियर SHM. तो बच्चों ये क्या हो गया, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर SHM, टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर SHM. ये हमारा एंगुलर SHM का टाइम पीरियड है. हो, आज के लिए इतना ही रखते हैं. आज हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत समझा है. आप इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार रिवाइज कर लो, 2 बार देख लो खुद से. ट्राई टू डिराइव ऑल दो 6 इक्वेशन, 6 रिलेशंस. एक्सटीवीटी हमारा जो है उसका 6 रिलेशंस यू ट्राई टू डिराइव ऑन योर ओन. Also try to figure out the time period for the angular SHM and try to figure out the time period for the linear SHM. आप खुद से डिराइव करके देखो, करो, समझो, और आपके दिमाग में और ज्यादा इस बात का क्लैरिटी आएगा कि बॉडी कैसे मूव कर रहा है, क्या पोजीशन है, कैसे टाइम है. तो एक आपको ज्यादा क्लैरिटी इसको समझ में आएगा बच्चों, ठीक है. तो वी विल स्टॉप फॉर टुडे हियर ओनली. लेट्स कैच अप इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन. टिल देन कीप स्टडीing and keep learning, and do not forget to like, share and subscribe if you like the way I teach and if it is coming of some use to you. ऑल गुड बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय एवरीवन.